तो क्या रिएक्शन था जब आपने अपना रिजल्ट देखा फर्स्ट टाइम? मैं तो बहुत हैप्पी और सरप्राइज थी। मैंने बस लाइक 5-4 टाइम्स चेक किया कि ये सही है, मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग। Then I called my parents, told my husband. Everyone was so happy. आपने बार-बार देखा वो आपका रिजल्ट है? Yeah, even today. इवन टुडे आज भी आज भी? रिजल्ट कल आया था। हाँ। ओवरऑल जब आप एग्जाम देने गए थे, माइंड पे प्रेशर था? So much pressure. किस चीज़ क्योंकि का ये प्रेशर? लास्ट अटेम्प्ट था ना बिफोर my work permit expires. कब हो रहा है आपका वर्क परमिट एक्सपायर? May 1st. ओके, मतलब 15 डेज़ के बाद आपका वर्क परमिट एक्सपायर था। मैं तो बहुत हैप्पी और सरप्राइज थी। मैंने बस लाइक 5-4 टाइम्स चेक किया कि ये सही है, मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग। Then I called my parents, told my husband. Everyone was so happy. I got a chance to extend my work permit now. And I never thought I would be able to do it so fast. But all the teachers and your classes mostly, they were so helpful. So how much did you pay to us? $686, sir. Okay, for 12 months, right? So is it worth? Definitely worth it, sir. ओके, वेरी नाइस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर प्राइस कम है तो क्वालिटी भी कम होगी, है ऐसा कुछ? No, sir. Quality is definitely even more. सो मार्केट में बहुत सारे फ्रेंच ट्रेनर्स है, व्हाई डिड यू चूज फ्रेंच विद हरमन? It was my husband. Like he was like, there are so many good reviews and so many good results coming from French with Herman. We thought, okay, let's just give it a try. And also, it wasn't in person and it was flexible, especially for my work schedule. मतलब मैंने सुना था कि लोग फ्रेंच से कर रहे हैं, but I always thought that French is a tougher language to learn. But it wasn't really that hard. With all your classes, even when with your recorded classes, it felt like live classes. I used to listen, understand, and it was more like you were speaking to us directly. ओके, वेरी Yeah. First of all, congratulations, and let me confirm your score. So you got CLP 5 in comprehensive oral, which is equivalent to B1 level, and in expression oral you got B2 level 441, which is equivalent to CLP 6. And your name is Juveria, right? So Yes, sir. okay, fine, all right. Congratulations, and इस स्कोर के साथ आपका कनाडा में हो रहा है वर्क परमिट एक्सटेंशन, सो इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट। एंड कैसा लग रहा है आपको, एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग फ्रेंच विद हरमन? First of all, thank you so much, sir. And I'm so happy. Like my work permit was expiring in 15 days. ओके, But, so I got I got a chance to extend my work permit now. ओके। And I never thought I would be able to do it so fast. But all the teachers and your classes mostly, they were so helpful. ओके, सो व्हाट अबाउट अवर कोर्स स्ट्रक्चर लाइक सेल्फ पेस प्लस लाइव सेशंस, सो वर्क करा आपके केस में? Yes, definitely, sir. Because मेरा alternate days, I used to work until 9 o'clock. ओके, So I couldn't attend classes during that time. Then I'll attend the morning classes in that case. So they were both morning and evening. I would switch 2 days alternatively according to my work. सो इट वाज Was फ्लेक्सिबल फॉर यू? helpful. Yes, ओके, वेरी नाइस। ओके, सो you had attended classes with native French trainers and Indian trainers also? yes, sir. Okay, very nice. Faiza ma'am was really helpful with the speaking part. Okay, very nice. Okay, so what about the listening module? Listening तो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगती है, एंड आप मैं देख रहा हूँ उसमें आपने 363 ले लिए, विच इज इक्वलेंट टू B1 लेवल CLP 5। तो वो कैसे लिए और कितने टाइम में आपने ये स्कोर अचीव करा है? मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया था क्लासेस पूरे सुनना। फिर हम्म, like full pace started in January. हम्म। So I started just listening videos, and with my daughter, I used to watch cartoons too in French. इन फ्रेंच, वेरी नाइस। Yeah. तो इससे आपको So हेल्प yeah. मिली, राइट? ओके, और कौन सी स्ट्रेटजीज आपने यूज करी लिस्टिंग मॉड्यूल में? But more content, sir. Like how हम्म, much more you listen, you will understand. I हम्म। used to listen to one podcast 3 times until I ओके, get it. 3 times, 3 times नाइस, at least. वेरी नाइस। ओके, सो व्हाट अबाउट द स्पीकिंग मॉड्यूल? स्पीकिंग में भी आपका CLP 6 है, राइट? और B2 लेवल आपका है, राइट? और 441 है, तो वो कैसे आया? आप उसमें आपने क्या करा?
when I started, sir, I wasn't able to speak. Like there was a lot of hesitation, thinking that ओके। maybe ग्रामर में मिस्टेक हो जाएगी या वो मे बी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगा। बट महक मैम ने स्टार्ट करवाया कि वो हुँ, तो होते रहेगा, बस बात करना हुँ, चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हुँ, Yeah, then I kept speaking and Mehak ma'am and Faiza ma'am gave me tips and tricks how to improve, like क्या पूछने चाहिए like section A में. So हुँ। my section was really good all the time. ओके, सो आप इंडियन प्लस जब आपने नेटिव फ्रेंच ट्रेनर से पढ़ा कॉम्बिनेशन स्पीकिंग क्लासेस में वो आपके लिए हेल्प करा, राइट? Yes, sir. ओके, तो जो टेफ की स्पीकिंग है जैसे पार्ट 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी उसमें आपका एग्ज़ाम में सही हुआ था? Yes, sir. ओके, ओवरऑल जब आप एग्ज़ाम देने गए थे माइंड पे प्रेशर था? It was so much pressure किस चीज़ क्योंकि का ये प्रेशर था? लास्ट अटेम्प्ट था ना before my work permit expires. कब हो रहा है आपका वर्क परमिट एक्सपायर? May 1st. ओके, मतलब 15 डेज़ के बाद आपका वर्क परमिट एक्सपायर था। Yes. तो आपको था कि इस अटेम्प्ट में आपका स्कोर आए आए फॉर श्योर। हाँ, yes, sir. तो क्या रिएक्शन था जब आपने अपना रिज़ल्ट देखा फर्स्ट टाइम? मैं तो बहुत हैप्पी और सरप्राइज़ थी। मैंने बस लाइक 5-4 टाइम्स चेक किया कि ये सही है, मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग। Yeah. Then I called my parents, told my husband, everyone was so happy. ओके, तो आपकी फैमिली इंडिया में है, यहाँ पे कनाडा में ही है? हस्बैंड यहाँ है, फैमिली पेरेंट्स इंडिया में है। अच्छा, इंडिया में हो, सारे खुश हो गए? यस सर, वेरी हैप्पी। आपने बार-बार देखा वो आपका रिज़ल्ट है? या इवन टुडे इवन टुडे आज भी आज भी रिजल्ट कल आया था। हाँ, आज भी देख रहे थे? हाँ, खुशी हो रही थी, हाँ जी, मेरा ही हाँ। है ना? कि 5-6 महीने में आपने ये रिज़ल्ट अचीव करा, राइट? यस सर। कि 5-6 महीने में ये रिज़ल्ट अचीव करा और उसके बाद कनाडा से इंडिया वापस नहीं जाना पड़ रहा। अल्टीमेटली वो जो वर्क परमिट आपका वो एक्सटेंड हो जाएगा इस स्कोर के साथ और फर्दर प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ, डेफिनिटली सर। कितने साल से आप कनाडा में थे? मैं 2021 से। ओके, तो उसके बाद जो आपकी वर्क परमिट एक्सटेंशन का ज़रिया बना वो सिर्फ़ फ्रेंच ही बना। आपने सोचा था कि फ्रेंच से ही आपका वर्क परमिट एक्सटेंड होगा? नो सर बिकॉज़ माय जॉब वाज़ इन हेल्थ केयर, सो यूजुअली ओके। हेल्थ केयर में निकल जाता है। हुँ, हुँ। लेकिन जब मेरा एक्सपीरियंस हो गया इनफ, हुँ, तब हुँ। जो मेरी जॉब है वो निकल गई कैटेगरी में से है हेल्थ केयर हुँ, के, सो इट हुँ। वाज़ लाइक लास्ट मिनट। अब अच्छा, कुछ ऑप्शन नहीं है तो ठीक है फ्रेंच। ओके। मैं आपकी खुशी देख के आइडिया लगा रहा हूँ कि आप इस टाइम बहुत खुश हो, राइट? क्योंकि वर्क परमिट एक्सटेंशन का जो था वो सिस्टम फ्रेंच से बना। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो जब आपने सोचा होगा कि फ्रेंच आपने शुरू करनी है, राइट? तब सोचा था कि फ्रेंच आपको इतनी आगे ले जाएगी कि एक ज़रिया बन जाएगा यहाँ पे वर्क परमिट एक्सटेंड करने का? मतलब मैंने सुना था कि लोग फ्रेंच से कर रहे हैं, हुँ, बट आई ऑलवेज़ थॉट दैट फ्रेंच इज़ अ टफर लैंग्वेज टू लाइक लर्न, हुँ। but it wasn't really that hard. With all your classes, हुँ। even I when with your recorded classes, it felt like live classes. I used to listen, understand, and it was more like you were speaking to us directly. ओके, वेरी नाइस। Yeah. ओके, थैंक यू। और जब आप लेट्स सपोज़ जैसे आपने स्टार्ट करी थी जर्नी, राइट? लोग आपको बहुत डिमोटिवेट करते होंगे कि कहाँ से फ्रेंच होएगी, इतनी मुश्किल है। तो फिर भी आपने करके दिखाई है, राइट? Yes, sir. तो वो भी एक डिमोटिवेशन पार्ट था। No, everyone was supportive in my case. ओके, वेरी नाइस। Then even my colleagues, my ओके, husband, everyone. Yeah. एवरीवन इज़ सो सपोर्टिव। तो आपने Yeah. कनाडा में रह के अपनी ये रूटीन कैसे मैनेज करी? लाइक आप वर्क करते हो, किड्स को मैनेज करते हो? तो जब दिसंबर आया था, हुँ, मैंने वो जो 15 डेज़ हॉलिडेज़ मिलते हैं, उसमें मैंने ज़्यादा कैच अप किया। ओके, मोर 8 टू 10 आवर्स मैं बस लाइब्रेरी जाके पढ़ती थी। अच्छा, ओके, लाइब्रेरी जाके आपने फ्रेंच शुरू करी थी वहाँ पे। हाँ, मतलब ओके। ज़्यादा कैच अप तब किया। बट एवरी डे आई यूज्ड टू स्पेंड एट लीस्ट 2 आवर्स हुँ, हुँ। फ्रॉम स्टार्टिंग। पर जब क्लासेस तो 4 आवर्स के मैं लगाती थी हर दिन। हुँ, हुँ, हुँ। But besides that, watching movies in हुँ, French or हुँ। speaking, that is ओके, different. चलो अब आपका जो मेन प्रेशर था वो तो कम हुआ, राइट? Yes, sir. ओके। ओके, सो मार्केट में बहुत सारे फ्रेंच ट्रेनर्स हैं। व्हाई डिड यू चूज़ फ्रेंच विद हरमन? It was my husband. I don't use Instagram that much.
So Okay. he saw and he was like, there are so many good reviews and so many good results coming from French with Herman. So we thought, okay, let's just give it a try. And also, it wasn't in person and it was flexible, especially for my work schedule. Hmm. Okay, very nice. So how much did you pay to us? $686, sir. Okay, for 12 months, right? So is it worth? Definitely worth it, sir. ओके, वेरी नाइस। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर प्राइस कम है तो क्वालिटी भी कम होगी। है ऐसा कुछ? No, sir. Quality is definitely even more. ओके, चलो बहुत अच्छी Yes. बात है। सो आई एम हैप्पी कि जो आपका वर्क परमिट एक्सटेंशन है वो प्रोसीड हुआ है, राइट? बट आपका जो अल्टीमेट गोल है वो होनी चाहिए अब कनाडा की पीआर। तो सीएलबी 7 आपके चारों मॉड्यूल्स में आने चाहिए, ठीक है? आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, ठीक है? फर्दर जर्नी और हम बहुत जल्दी फिर नेक्स्ट जो सीएलबी 7 का रिजल्ट होएगा, राइट? उसकी वीडियो बनाएँगे। Okay, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच एंड लास्ट क्वेश्चन, ये जो टास्क था वो ईज़ी था और डिफिकल्ट था? Difficult ही था, sir, but doable था. डुएबल मतलब था। are focused, you can do it. डू इट। क्या एडवाइस देना चाहते हो आप उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका वर्क परमिट कनाडा में एक्सपायर हो रहा है, जो आपकी सिचुएशन पे हैं, जिनका 15 दिन के बाद एक्सपायर हो रहा है? जिनका अभी तो मतलब जो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए, they are good, हुँ। but for those who don't, they can still do it. Even if they have to go back to India, it's not a big thing. They can still get it done in 6 months and come back to Canada again. ओके। सो ये वो लोग इंडिया जाएँ, इंडिया जाके भी फ्रेंच करके वापस आ सकते हैं। दैट्स द पावर There ऑफ is. लर्निंग फ्रेंच। Yes, sir. Okay. All right. Thank you so much. And I wish you all the best for your PR journey. And yeah. Okay. Thank Congratulations once again. Thank you. thank Free audio post production by alphonic.com.